ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। अरदास है हक ते सच की जित होवे। उन्हां दिल्ली दीयां सड़कां दे बैठे हुए संघर्ष करने वालियां वास्ते दो छिन सुरत ला के अरदास करिए, फिर शब्द नूं विचारन दा यतन करांगे। सारे प्यार विच जुड़ के जपो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। सच्चे पातशाह महाराज सानू हुक्म कर रहे हैं। वाहिगुरू जी है तो सब जगह है, पर गल मन दे मनण दी है, गल मन दे टिक जाण दी है, मन दे निश्चय दी है, गल मन नूं सोझी आउंदी है, मन दे अंदर ज्ञान दे प्रगाश होंदी है सब जगह। जिवें कोठड़ी दे अंदर सब वस्तुआं ने, पर रोशनी होएगी तो दिसदियां ने। सब वस्तु होने के बावजूद भी जे असी फिर भुखे बैठे हाँ, इसदा मतलब सानू पता नहीं है कि सब कुछ साडे कोल है। रोशनी होवे, असी वेखी अपनी कोठड़ी के अंदर, तो फिर पता लगेगा कोठड़ी भरी पई सी ते असी बाहर भटक रहे सी। मन हर जी तेरे नाल है, सर्ब निरंतर जानिया। शब्द बड़ा कमाल दा जी, जानिया मौजूद है पर जानिया किसे किसे ने है। मौजूद सारियां दे नाल है जी। जह धिर देखो तह धिर मौजूद। जिथे प्रभ आराधी है, जिथे हर आराधी है, तिथे हर मित सहाई। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, जह जह पेखों तहां हजूर दूर कतहू ना जाई। रव रहिया सरबतर में, कोई है जगह सरबतर दे विच, फिर सारी कायनात जरा जरा है। पोहप मध फुल दे विच जिवें खुशबू, इदां वाहिगुरू सारियां दे विच व्यापक है। हुण उहनूं मुट्ठी 'च नहीं फड़िया जा सकदा, उहनूं माणिया जा सकदा है। खुशबू नूं मुट्ठी 'च नहीं फड़िया जा सकदा, माणिया जा सकदा है। तैसे ही हर बसै निरंतर, घट ही खोजो पाई।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਿਮਰਨਾ ਮਨ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਨ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਫੜਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਕਰਕੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈਂ ਲੀਨੀ। ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਮਤ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ, ਪਰ ਰੂਪ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹਉ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ, ਫਿਰ ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਥ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਥ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 4-4 6-6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਹ ਝਪਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਝਪਟ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਝਪਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੈ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ। ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਟੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ। ਵੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ 5-7 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਮ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਜਾ ਕਾਹਦੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਇਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਪਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਕੁਕਰਮੀ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਗਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਖਾਵਤ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਈਏ। ਆਲਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਕਾਮੀ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਚੋਰ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਿਆਸਾ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਉ ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਲੁਭਾਵੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਦਾਸ ਹਰ ਜਸ ਭਾਵੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਊਠ ਖਲੋਆ। ਜੇ ਦਲਿੱਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈਸੋ। ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਭੋਗ ਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ। ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਆ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨੇਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਲਪਟਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਨੇਹ ਕਰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਸੀ
निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। रब उत्ते शिकवा किया किसी ने, उदाहरण है संसारी साडे समझण वास्ते। किसी ने शिकवा किया कि हे मालका, जदों मैं घर तो तुरिया सी ते मैं तैनूं कहा सी कि तू मेरा साथ देवीं, मैं बिकड़े पैंडे ते चलिया ते तू मेरे नाल वादा किया सी मैं तेरे नाल हाँ, मन हरजी तेरे नाल है। तू मेरे नाल वादा किया सी मैं तेरे नाल हाँ। हुण उदाहरण है, सिर्फ इहनूं समझिओ। ते शिकवा करन वाला कहंदा जदों सौखा पैंडा आउंदा सी उदों ते मैनूं तेरी पैड़ दिखाई दिंदी सी, तेरी होंद दिखाई दिंदी सी। मतलब यही सी ना, कदमां दी पैड़। मतलब ये कहंदा कि मैनूं ऐं लगदा सी भी तू नाल आ, मैनूं होंद दिखाई दिंदी सी, मैनूं चिन्ह दिखाई दिंदे सी तू नाल है। ते जदों किते औखा पैंडा आउंदा सी उदों इक्को ही मेरे कदमां दी पैड़ रह जांदी सी, तू दिसदा नहीं सी, तेरे वाली दिसदी नहीं सी, एक पैड़ दिसदी सी। हुण सिर्फ उदाहरण है, इहनूं ध्यान नाल सुणना। दो दिसदियां सी ते मैनूं दिसदा सी ऐ मैं चल रहा ते आ मेरे नाल तू चल रहा। पर जदों किते कोई कंडियाला राह हुंदा सी, दुखां दा राह हुंदा सी, एक ते दिसदी सी दूजी दिसणों हट जांदी सी, ते इहदा मतलब एक मेरी सी ते तू है नहीं सी। ते वो कहानी लिखण वाले ने क्या, इष्ट ने आख्या, मालक ने आख्या, परमेश्वर ने आख्या, भोलिया जिहड़ी एक दिसदी सी ना मेरी सी, क्योंकि मैं औखे राह उत्ते तैनूं अपनी गोदी च चुक लैंदा सी। नाल है ते औखे राहां च सानूं गोदी च चुक्या होया है। जानिया नहीं, हर सर्ब निरंतर जानिया। जिन्हां ने जानिया नहीं उन्हां दे अंदर टिकाओ ही नहीं, उन्होंने मनण नूं तैयार ही नहीं, साध संगत निश्चय नहीं बज रहा। जानिया नहीं तो जानिया किवें जाएगा जदों मन मन्नेगा। मन है नहीं इत्थे, मन बाहर चलिया गया। मनण वाला मन बाहर भटक रहा है। इदां ही हुंदा साध संगत जी। इत्थे कुछ रख के ना ते वीरां नाल गल पता नहीं लगता भी अगों बाणी की कह रही है, शब्द की कह रहा, हुक्मनामा की पढ़िया जा रहा, सुनिया ही नहीं हुंदा। वो कहंदा वेखो मैं किन्ना वड्डा प्रसाद लैके आया, वड्डी परात। तो साडे वीर भी जे ते कोई डुन्ने वाला आ जाए तो उन्होंने वीर नूं कह देणगे भी बाहर कटा लै, किरपान भेंट करा लै। इन्ना फर्क क्यों भला? जे बहुते वाला आ जाए तो फिर नहीं कहा जाता। ध्यान किधर हुंदा? मन ने नहीं सुनिया। मन मन्नेगा तो तू जानेगा भी तेरे नाल कौन है, तेनू गोदी च किहने चुक्या होया है, तेरा आधार कौन है, तेरे प्राण किहदे आसरे चल रहे हैं। कदी वेख्या ही नहीं मन ने मुड़ के, ये उडारियां मारी क्या। साचे साहिब स्यों मन मानिया। तो उन्होंने पूछो भी भैने जिंदे मेरी सखीए रूहे की फर्क पिया जदों तू कहा भी मन मन गया, मन मन गया, मन मन गया। कहंदे ये फर्क पिया भी जेड़े कंत नूं मैं दूर समझदी सी, वो कंत मैनूं दिसिया भी वो नाल रसदा है, नाल वसदा है। हर सर्ब निरंतर जानिया। अगे मैनूं पत्तियां विच, रुखां विच, नदियां विच, धरती विच, पहाड़ां उत्ते, आकाश उत्ते, आंढी गुआंढी दे विच कुछ नहीं सी दिसदा। ते जिद्दन मेरा अपना मन मन्निया ते मैनूं जर्रे जर्रे च, कीट पतंगे विच भी, अपने गुआंढी विच भी, सारियां च रब दिसन लग पिया। बदलिया की? बाहर नहीं कुछ, अपना मन। बाहर नहीं कुछ भी बदलिया। वही आसमान है, वही धरती है, वही नदियां नाले ने, वही आंढी गुआंढी ने। बदलिया की है? विसर गई सब तात पराई। तात जिसदे अंदर तात पराई होए तिसदा कदे ना होवी भला। ईरखा दी अग बुझ गई, किरणां दी अग बुझ गई। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हम को बाणे आई। तो साध संगत जी इत्थों बदलाव शुरू होना अपने मन तो। मन मानिया, यही नहीं मन रहा, इनू मना लै। उंज कहंदा मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदा, पर मन कहंदा मैं तो मनदा नहीं। जीभ कहंदी है रोज़ गुरु मानियो ग्रंथ, मन कहंदा मैं तो मनदा नहीं।
जे मन ने मन्निया हुंदा ते इन्ने शरीर नूं कमांड देनी सी भी वो कुछ कर जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, क्योंकि मन अखां नूं कह रहा, मन पैरां नूं कह रहा, मन कहंदा खाण नूं जी कर, मेरा मन करदा सी जी। मन उकसा रहा भी जीव के चस्कियां वास्ते, इंद्रियां के भोगां वास्ते, ते जे जो जीव कह रही है जे नाल मन मन गया हुंदा फिर बोल बदल जाने सी, फिर तकनी बदल जानी सी, फिर कमाउणा बदल जाना सी, सब कुछ बदल जाना सी। भी नहीं पई। हुण मेरा मन कहंदा है भी चौपड़ नहीं खेलना, मुजरा नहीं वेखना, प्यालियां नहीं छलकाउणियां। हुण मेरे मन ने गुरु नानक दे बोल मान लए है, ते गुरु नानक ने समझा दिता है कि अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। हर सर्ब निरंतर जानिया मैं उहदी हजूरी विच हां, मेरा मन मन गया ते मैं रब दी हजूरी विच माड़ियां गल्लां नहीं करनियां, मैं उहदी हजूरी च चोरी नहीं करनी, मैं उहदी हजूरी च इत्थे बैठ के मैं जे गुनाह करा तो तुसीं कहोगे इहदे तो महापापी कोई नहीं। तो जिदन मन मन गया ना उदन कहेगा मैं दुकान ते बैठा होया भी उहदी ताबिया विच हां, उहदी हजूरी विच हां, इस वास्ते हुण मैं मिलावट नहीं करनी, हुण मैं धोखा नहीं करना, हुण मैं गुनाह नहीं करना। आया सिमरन, आया मन मनना, आया सर्ब निरंतर जानिया। पर असीं उहनूं कुट्टांगे जिहड़ा इत्थे बैठ के गुनाह करेगा, जिहड़ा दुकान ते दफ्तर च बैठ के करेगा, रिश्वत लैंदा करेगा, मिलावट करदा करेगा। कहांगे कोई नहीं, सारे ही करते हैं कि सर्ब निरंतर नहीं ना जानिया। इन्ना क फर्क है साडा साध संगत। जिंदगी नूं जे बदलना मन नूं मना लै, तेरा नजरिया बदल जाएगा। नज़र उही रहनी है, अखां उही रहनी है, तकनी बदल जानी है, नजरिया बदल जाना है। संसार उही रहना है, सुभाव बदल जाना है। जुबान उही रहनी है, बोल बदल जाने हैं। यकीन करियो साध संगत। सिर्फ की करना है जी, सारे लोगों को असीं कहंदे आ, मैं प्रचार करदा कहना भी लोको गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्निया करो। सतगुरु कहंदे पहलां तूं अपने मन नूं मना ले। अर्थ है ही है ना जी। सारी लुकाई नूं कह रहे हैं भी संसार दे लोको गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन्नो, तुहाडा भला हो जाएगा। महाराज कहंदे मन मानिया, पहला साचे साहिब सिओ मन मानिया, भी तेरा मन गया भाई। तेरा मन मन गया जी। आओ वाहिगुरू वेखीए, कित्थे वेखीए? सर्ब निरंतर। सर्ब निरंतर का मतलब है भी सब जगह ते रैगूलर। ये नहीं भी कदी कदी वीरवार इत्थे रब हुंदा ते फलाने थां ते जाना, मंगलवार उत्थे हुंदा। नहीं जी, हर जगह है, हर वेले है। ना वो जगह की कैद विच है भी भारत विच रब है तो दूजे देश विच नहीं है, इस बिल्डिंग विच रब है तो दूजे थां ते नहीं है। ना वो जगह की कैद विच है, ना वो समय की कैद विच है। हर सर्ब मतलब सब जगह, ते निरंतर मतलब सब समय। वो सब जगह सब समय है। बस लोड़ की है? अपने मन नूं टिका। वाहिगुरू जी दूर नहीं है। मन नूं गुरु की मत दे। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। जे उहदे नाल मिलाप दा रंग मानना ते गुरु की मत लै। अंदर समझा इनू। वाहिगुरू ते कदी भी नहीं दूर होया जी, कदी भी नहीं तेरे तो दूर होया। वो पहला भी नाल सी, वो अज भी नाल है, तो वो सदा नाल रहेगा। तू दूर हो रहा है। कई बार हुंदा ना भी शरीर साडा किसी अपने सज्जन नाल गल्लां कर रहा, तो उसको कहंदा मैं सुनिया ही नहीं, मैं तेरे कोल, मैनूं पता ही नहीं लगा तू मेरे कोलों दी लंघ गया। वाहिगुरू जी ना पहला दूर सी, उदन भी तेरे नाल सी जिदन माता के उधर मैं प्रतपाल करे। अज भी तेरे नाल है, अंत भी तेरे नाल है। तेरा मन उडारियां मार के वाहिगुरू तो दूर जा रहा है। तू दूर भज रहा, परमेश्वर नहीं दूर तेरे तो हो रहा। दूर कतहू ना जाई, दूर कतहू ना,
पोहप मद जो बास बस्त है मुकरमै जैसे शाही, जै जै पेखों तह हजूर, दूर कतहू ना जाई। वो नहीं जाता दूर, छड्ड के नहीं जाता। तू अपने मन नूं मोड़ लिया होया है। रव रहिया सरबतन में मन सदा ध्याई, ईत ऊत नहीं बिछड़ै सो संगी गणिया, बिन सजाए जो निमख में। ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ जी सुख, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ तेरा मन लग्या होया, सो अलप सुख पणीए। फिर ये शब्द की रहाओ की पंक्ति है, इत्थे टिकना बड़ा जरूरी है। साध संगत है, इत्थे साडे मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। पानी टिकिया होए ना जी, घड़ियां दे अंदर पानी है, तलाब दे अंदर पानी है, जो टिकिया हुंदा ते चंद्रमे का अक्स दिखाई दिंदा है टिकी हुई रात च। ते जे वो हवा के हलारियां दे नाल हिल गया फिर कुछ भी नहीं दिखाई दिंदा। वाहिगुरू जी का अक्ष दिखाई देगा, इनू टिकाउण दा यतन कर, अरदास कर सच्चे पातशाह दे चरनां च। सारा ध्यान अपने निज वल दे, ਇਹਦੀ साधना कर, ਇਹਨੂੰ मना, ਇਹਨੂੰ धार्मिक बना। पर बड़ा सौखा है जगत नूं धार्मिक बनाउणा, जगत नूं उपदेश देना बड़ा सौखा है। सुन मन मेरिया, इत्थों शुरू करते हैं महाराज। जदों भी उपदेश दिंदे ने महाराज इत्थों शुरू करते हैं। पर ये मन सुन नहीं रहा जी। ये कृपा इत्थों अज महाराज ने आरंभ की। आगै सुख मेरे मीता, जिन्हें पहला सानू वसंदो को हथड़ा था, सिर तलै पांव उपर। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कितना साड़ी राखी की। साध संगत राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मिटाई। तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाही, उथै तेरी रख। कित्थों की गल कर रहा है? अग्नि उधर की गल कर रहा है, उधर की, उधर की। जिथै कोई भी साथ देने वाले ने, तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाही, आग्या सुख। ते बाद विच जवाब दे देगा जो साडा बाद का समा आएगा, पिछे का समा आएगा, फिर वो जवाब दे देगा जी। जां पहला साडे कहण दे उत्ते उन्हें पालिया सी सानू। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, असी नहीं क्या, साडे कोल ते जुबान भी नहीं सी, साडे कोल अखर भी नहीं सी। खसम सेती अरदास वखाणै, किदां जी? उर्द ध्यान लिव लागे। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। तू चिंता छड्ड दे भाई, तू ये सुखां वाली चिंता, विपता वाली, औकड़ां वाली, मुसीबतां वाली चिंता छड्ड दे। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। करता पुरख वाहिगुरू जी के हाथ जिन्हों ने डोरी सुट दी ना जी, चिंता छड्ड दी, तो फिर आपे ही बिदा वाहिगुरू बनाउंदा। वो मेरा करता पुरख डोलन नहीं दिंदा जी। डिगै ना डोलै, की होया जी? दृढ़ता आ गई। दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। हुण डोलदा कदों है? जदों अंदर लाभ आउंदा है, तमा आउंदी है, टके उत्ते डोल जांदा जी। ते जे अंदरों पूर्ण तृप्त है, फिर सोने दे महल भी उसार के देण वाले कहंदे सी, लै लो, सिर्फ एक बारी सिर झुका के ईन मन लो, ना डिगे ते ना डोले। दृढ़ कर रहे हो, आ दृढ़ता पातशाह जी दिंदे है। फिर डोलत कतहू नाही, फिर मेरा साहिब नहीं डोलन दिंदा। साध संगत जी,
ये बड़ी कमाल की खेड है सच्चे पातशाह जी की। परमेश्वर बनत बनाई, उन्हें विधा ही इदां दियां बना दित्तियां जी। कहंदे प्रहलाद ने डोल जाना सी, पर बिध बनाउण वाले ने दिखाया भी थंम दे उत्ते कीड़ी तुर रही है। आपां बच्चे बचपन सी जदों ना, तो सीधियां सीधियां जिहियां बजुर्गां दे कोलों ये बातां सुणदे हुंदे सी भी कीड़ी ना बनदा रामा ते प्रहलाद डोल जांदा। हुण वेखो किड्डे कमाल दा तरीका सी समझाउण दा भी मेरा साहिब डोलन तो किद्दां बचाउंदा जी। हड्ड मास पैरां दे जिद्दां असीं सोचदे हां ना भी इदां दे हत्थ, वो निरंकार है। चक्कर चिन्ह अर वरण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के। उन्हें बनत इदां दी बनाउणी है, फिर डोलन नहीं दिंदा जी। डोलन ते रखो प्रभु नानक देकर हथ। हुण असीं ओहदे आदी हो गए भी किसी का स्पर्श होया, किसी ने थापड़ा दिता, ਉਹਦੀ ਬੇਦੀ ਉਹਦਾ हथ है, समझ लै तेरे सिर ते हथ है ਜਦੋਂ विधा बना रहा तेरे नहीं। फिर वो डोलन ही नहीं दिंदा जी। परमेश्वर बनत बनाई, बेद बना दी। तो सुनिया बचपन तो भी भाई कीड़ी तुरदी वेखी तो प्रहलाद नूं समझ आ गई भी जे तपे हुए थंम उत्ते कीड़ी तुर सकती है, मैनू की होएगा। बेद बनाई मतलब ये है। पता नहीं कीड़ी तुरी कि नहीं तुरी, चलो आप इस बहस विच नहीं पैना, पर सानू समझाउण वास्ते बजुर्गां ने इदां दी बात सुनाई, मन च निश्चा हो जांदा सी। बचाउंदा ते है ही है ना जी, उत्थे कीड़ी तुरी कि नहीं तुरी। दुनिया भर दे विच किड्डे महाराज कहंदे सैल पत्थर मैं जंतु पाए, बचाउंदा ते है ही है ना। जां अपने आप नूं वेखीए, माता दे उदर च कौन सानू खुराक दे रहा सी, की असीं मंग रहे सी। तह आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। ये बचन पढ़ते हैं असीं रोज। वो विधा बना के दृढ़ता दे दिंदा, सिदक दे दिंदा। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहूं नाही। तो जिहदी इन्नी कला वरत रही है, तेरा मन क्यों नहीं उहदे उत्ते टिक रहा। वेख तेरे आले दुआले जर्रे जर्रे विच कला वरत रही है। तेरे अपने वजूद दी होंद जिहदी कला करके आ। साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। दो गल्लां भी सब जगह ते है ते हर वेले है। ना समय की हदबंदी है ते ना जगह की हदबंदी है भी इत्थे हैगा रब उत्थे नहीं है। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, हर सर्ब निरंतर जानिया। सब जी तेरे दयाला, सब जी। हुण जिथे ते मन टिकना चाहिए सी उत्थे टिकिया नहीं। हुण मन विच की है, हड़ आया पिया फुरनियां दा, वाशनावां दा। ते मन नूं ना रब चेते ना मरना चेते भी मैं छड्ड जाना सारा कुछ। घट्टो घट्ट मन नूं यही चेते आउंदा, मौत ही चेते आउंदी तां भी रब चेते आउंदा। ते मन दियां उडारियां जड़ियां तमा सी ना मन दी। वेखो तरक्की करनी कोई बुरी गल नहीं, पर मन तमा दी अग च सड़ गया। ये होर पता नहीं की सोची गया, गलतान हो गया अपनियां सोचां दे अंदर। जिथे मनना सी उत्थे टिकिया नहीं। महाराज ने बचन किया बाणी च कि एक दिन आउंदा मन की मन ही माहे रही। जड़ियां उडारियां मारदा सी वो अंदर ही रह गईयां साध संगत। ते की होया, ना किते चंगे पासे तुरिया, ना कोई चंगा कर्म कीता। तो आके इत्थों झपट मार ली काल ने भी चल पई चलीए, मौका पुग गया हुण तेरा। ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही। उन्हें लपेटा मार लिया, तेरी चोटी तू आके फड़ चल। तो जिथे तेरा मन लग्या सी, मेरा मन ये ना बड़ा लगता है, इत्थे बड़ा मन लगता जाके। जिथे तू मन लाई बैठा सी वो सारे जवाब दे गए फिर तेरा।
दारा मीत पूत रथ संपत बड़ा खजाना बड़ियां गड्डियां बड़ा मन लगता सी बड़ा मिठा लगता सी संसार बहुत ये मन परचिया होया दिन रात बंदा रुझिया होया तो फिर सारा कुछ जड़ा सी ना सब कुछ हथों एक मिनट चों दी छुट गया सब कुछ छड्ड के तुर पिया जी कुछ भी अपना नहीं बनया खिनमै भई पराई वाली गल बन गई तो महाराज कहते सर्ब सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतिपाला सारे तेरी टेक ते है ते जिन्होंने भरोसा है उन्होंने दिस रहा भी मेरी पालना कर रहा मैनू तलियां ते चुक्या होया चौगिरद हमारे राम कार जदों अजे जन्म भी नहीं सी होया ते सानू दुनिया भर के रोगों तो बचाने वास्ते माँ के गर्भ के अंदर पता नहीं की ते वाहिगुरू जी ने विज्ञानी डॉक्टर कहते भी दुआले एक इदां दी झिल्ली है भी जे कोई रोग का कीटाणु जाता भी है तो वह नेड़े नहीं पहुँच सकता तो जे उत्थे वाहिगुरू जी ने इदां दी कार बनाई सी विज्ञानियों ने मान ली साध संगत तो इत्थे भी उन्हें सानू दुनिया भर के विकारां तो बचाने लई कार कड्ढी हुई है दुख लग्गै ना भाई इस वास्ते सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई अपने भगत करें प्रतिपाला अचरज आ बड़ा कमाल का वचन है जी जिथे जाके साडी जुबान सिर्फ अनुभव करता मन तो जुबान कहती हुण गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए वो गूंगे दे गुड़ खाण वाली ही व्याख्या अचरज पहला मैं जदों नहीं सी जानिया उदों मैं बोलदा सी ते जदों जानिया उदों मन दे अंदर ही टिक गया बोलण जोगा भी नहीं रहा फिर पता लग्या भी बोल के की दसां मैं तैनूं अचरज तेरी वडियाई अद्भुत भी दुनिया ते अचंभत करने वाली जिहदे तुल संसार उत्ते होर है ही नहीं दुनिया दी वडियाइयां बड़ियां वड्डियां वड्डियां दियां वड्डे कियां वडियाइयां किश कहना कहन ना जाए जिथे कहन ना जाए उत्थे अचरज जिथे नानक कथना करड़ा सार उत्थे अचरज जिथे कथन ना जाई अकथ जिथे जाके कहते हाँ आपों बोलना जानदा मैं नहीं बोलना जान सकता कमाल है जी उस चुप विच भी कितना आनंद है उस चुप विच भी कितनी बंदगी है उस चुप विच भी किड्डा कमाल दा सुनेहा है अचरज तेरी वडियाई असल चो अचरज ही तेनू सिमरन नाल जोड़ेगा नित नानक नाम ध्याई अचरज ही अंदर याद बनाएगा अचरज ही अंदर लिव बनाएगा जिन्नी देर अचरज नहीं अनुभव हो रहा उन्नी देर लिव नहीं बननी जी हर पासे वरत रहा हर सर्ब निरंतर जानिया तो जिदन जानिया उदन लग्या अचरज हो मैं तो कुछ होर ही समझी बैठा सी तू तो होर ही तरह वरत रहा तू तो जरे जरे कण कण च वरत रहा हर सर्ब निरंतर जानिया यही है सिमरन जी जिहड़ा मन मानिया तो शुरू होंदा है गुरु साहब जी के चरणों च अरदास करिए साध संगत है तो छोटा जिहा नुकता है पर असीं अपने मन तो शुरू करिए पता नहीं किहड़ी कुमत च फसिया होया तैनूं लोकां दी कोई चिंता परवाह नहीं रहनी तू फिक्र ना कर मन माने लोग ना भतीजा तो क्या कीजे अजे सारी तरह मन कह रहा नहीं वह ना नाराज हो जाए उन्होंने खुश करना उहदे कोल जाना जिदन इत्थे टिकेगा ना फिर अचरज नज़र आएगा भी मैं तो ये देख सोचिया भी नहीं सी जो तू वरत रहा बादशाह नित नानक नाम फिर नहीं विसरदा नाम साध संगत महाराज सारे उत्ते बख्शिश करन आप जी के चरणों च बेनती है कि 2 दिन का समागम उचेचे तौर पर बड़ा ही जरूरी सी जो
ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 30 ਤੇ 31 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਵਸਦੀ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨੂਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪੰਘਰਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਪਿਘਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਧੰਨ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਭਲਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ, ਤੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਰਤਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।